फर्स्ट assumption है gaseous molecules are always in random motion. Second, in all direction velocity is same. In all direction velocity is same. Second, third point, gaseous molecules are very small and volume is negligible to the volume of the vessel. Volume of the gaseous molecules is negligible with respect to the volume of the vessel in which they are kept. With respect to the vessel in which the gaseous molecules are contained. In which the gaseous molecules are contained. जिस वेसल में रखी जाती है उसके रेस्पेक्ट में इसका मॉलिक्यूल वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल होता है. 4 पॉइंट, volume of the gaseous molecules are negligible with respect to the vessel in which they are contained. In which the gaseous molecules are contained. ये आइडियल गैस की बात सब चल रही है. इतना मान लेते हैं तब हम लोग डिराइव करेंगे. And the collision between two molecule is elastic. Collision, हाँ 4th point, collision between two molecule is elastic collision. Collision between two molecule is elastic. Elastic means there is no loss of kinetic energy. That is there is no loss of kinetic energy. Collision between two molecule is elastic. That is there is no loss of kinetic energy. That is there is no loss of kinetic energy. Fifth point लिख लो कि time interval between two successive collision. Time interval between two successive collision is taken same. Time interval between two successive collision is taken same. And the path is same. हर collision के time interval को same माना गया. Clear? Time interval between two successive collision is same. And the path traveled between the two successive collision is known as the free path. इसको फ्री पाथ कहते हैं. कहने का मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे चला, तो ये जो पाथ होगा इसको फ्री पाथ कहते हैं. टाइम ये इंटरवल को हम सेम मानते हैं और हम मान करके चलते हैं कि जो ये पाथ जो होता है एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन का, ये हमेशा फ्री पाथ होता है और इसे स्ट्रेट पाथ मानते हैं. फ्री पाथ को स्ट्रेट पाथ मानते हैं. इतना assumption के बाद we will derive the pressure exerted by the gas on the walls of the container. तो इसके बाद हम लोग ये assumption मानने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें यूज होगी, pressure exerted by the gas. सर, गैस मॉलिक्यूल जो सरफेस में लगेगा वो भी इलास्टिक होगा. हाँ, ये मान करके चलेंगे आपस में and against the wall of the container. In both the cases it is elastic collision. ध्यान रखिए. आइडियल गैस एक्चुअली आइडियल मान करके, जैसे भी ने बर्नाली में पढ़ा, आइडियल ना मान करके चलते
कि नॉन विस्कस। अब पता लगा कि इतना विस्कस हो, हम फ्लूइड हमने जो हनी ले लिया और तो हर सबके लिए अलग अलग आएगा। तो हम जो भी मान करके चलते हैं, एक आइडियल ना मान करके चलें तो उसका फार्मूला कभी डिराइव ही नहीं हो सकता। इसलिए एक जनरल फार्मूले के लिए हम आइडियल कंडीशन मान करके चलते हैं, इसके बाद उसकी जो कॉम्प्लिकेसी आती है उसके अनुसार उसमें चेंज करते हैं। लेकिन पहले फार्मूले के आइडियल डेरिवेशन के लिए आइडियल कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। इतना अगर ना माने तो क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, सब उसी में फिर फाइनली ये जो है प्रेशर निकालना बड़ा कठिन होगा। तो हम यहाँ पे इतना कंडीशन मान लेते हैं कि जो कोलिजन होता है इलास्टिक होता है, इसका जो वॉल के अगेंस्ट जो कंटेनर माने कंटेनर से जो कोलिजन होता है दैट इज आल्सो इलास्टिक कोलिजन। प्रेशर exerted by the gas, pressure exerted by gas on walls of container कंटेनर की वॉल पर गैस कितना प्रेशर लगाती है, इस चीज को हम लोग इसको डिराइव करेंगे। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज रैंडम, इफ ए गैस मॉलिक्यूल हैज द वेलोसिटी v, so it will have the components along x, y, z axis will be Vx, Vy and Vz. Its velocity is random. A gas molecule whose velocity is v, it will have the components along x, y and z axis will be Vx, Vy and Vz. Is it clear? Therefore, the velocity v square it is equal to Vx square, Vy square एंड Vz स्क्वायर। तीनों कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होगा V के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर। सपोज along the x axis, if suppose along the x axis the velocity is Vx and if yes you have right, and if it collides, if the gas molecules collides against the wall of the container, against the wall A, ये है against wall A of the container, then change in momentum after the collision, delta P it is equal to minus mbx minus mbx. Try to understand change in momentum after the collision. अभी ध्यान रखना माइनस mbx जब ये कोलाइड करेगा तो मास इसका अगर m है तो मोमेंटम कितना होगा mbx। कोलिजन के बाद मान लेते हैं इसका मोमेंटम p1 है, कोलाइड होने के बाद मोमेंटम p2 हो जाएगा, डायरेक्शन बदलेगी, मतलब इनिशियल मोमेंटम हमारे पास p1 mbx, तो p2 कितना हो जाएगा माइनस mbx, डायरेक्शन बदल जाएगी ना, इस डायरेक्शन में mbx, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस mbx, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये डेल्टा p इज इक्वल टू p2 माइनस p1, तो माइनस mbx और माइनस mbx, तो मेरा माइनस 2 mbx, ये फाइनल है, इनिशियल वाला लिख देंगे, इट इज माइनस 2 mbx, ध्यान रखना। तो ये माइनस 2 mbx, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। Then the rate of change of momentum is known as the force. Rate of change of momentum is known as the force. Therefore, force
momentum transferred to the, therefore the momentum transferred to the wall A, therefore momentum transferred, देखो इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही फोर्स ए पर लगेगा, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल ए, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल ए, इट इज इक्वल टू 2mvx। अगर इस डायरेक्शन में चेंज हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो ये हमारा मोमेंटम इतना ट्रांसफर हो गया पर सेकंड। तो ये जो bx मीटर पर सेकंड है, तो ये हमारे पास एक कोलिजन में पर सेकंड इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो गया 2mvx, ठीक है ना, इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। देयरफॉर फोर्स अप्लाइड, therefore force applied on the wall A, therefore force applied on the wall A, it is equal to mvx, ब्रैकेट में लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स। मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज नोन एज द फोर्स। Now you see, mvx इतना मोमेंटम, इतना फोर्स ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। इसे हम फोर्स कहते हैं, इसलिए फोर्स इतना ट्रांसफर हो गया। अब सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, यहाँ ध्यान में रखना, कोलिजन इज इलास्टिक, जैसे ही यहाँ पे कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद ये सीधे स्ट्रेट पाथ में यहाँ आएगा और इस वॉल से फिर कोलाइड करेगा यहाँ पर, और लेंथ कितनी है l, तो एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के पहले ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2l डिस्टेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब यहाँ से कोलाइड किया, कोलिजन इज इलास्टिक मीन्स वेलोसिटी रिमेन द सेम आफ्टर कोलिजन, तो उसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा और इसी वॉल से फिर कब टकराएगा, आफ्टर ट्रेवलिंग द 2l डिस्टेंस। सो व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल बिफोर द सेकंड कोलिजन, टाइम इंटरवल बिफोर द सेकंड कोलिजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, time interval before the second collision, before the second collision, it is equal to 2l upon bx टोटल। यहाँ से गया फिर यहाँ पे आएगा 2l डिस्टेंस और वेलोसिटी कितनी है bx, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड, तो 2l अपॉन bx सेकेंड, ध्यान में रखना। इट मीन्स टाइम इंटरवल बिटवीन बिफोर द सेकेंड कोलिजन इट इज इक्वल टू 2l अपॉन bx सेकेंड। तो देख लेना, 2l अपॉन bx सेकेंड में टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इट इज इक्वल टू 2l अपॉन bx सेकेंड। इट मीन्स इन bx 2l अपॉन bx सेकेंड वन कोलिजन आकर, सो अब देख लेना एक कोलिजन ये हो रहा है, यहाँ पे देख लेना नंबर ऑफ कोलिजन्स लिखेंगे, सिंस इन 2l अपॉन bx सेकेंड, अच्छा since in 2l upon bx second, since in 2l upon bx second one collision आकर, one collision आकर O double C U R, one collision आकर, therefore in 1 second, therefore in 1 second number of collision will be
therefore in 1 second number of collision will be number of collision in 1 second number of collision will be number of collision bx upon 12 upon bx में एक कोलिजन, तो 1 सेकंड में 1 अपॉन bx अपॉन 12 कितना हो जाएगा, bx अपॉन 12 कोलिजन। बस समझ आ रही है? तो इतना कोलिजन हो जाएगा। इन वन कोलिजन द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल it is 2 mbx. Note down. In one collision force applied on the wall it is equal to 2 mbx. 2 mbx हमने पहले से पहले फोर्स अप्लाई हुआ था ना इतना। एक कोलिजन में जब पहली बार कोलिजन हुआ तो कितना फोर्स लगा था, 2 mbx। therefore force applied in 1 second, force applied in bx upon 12 collision, therefore force applied in Vx upon 12 collision, ये हमारा 1 सेकंड कितना कोलिजन हो रहा है, Vx upon 12 collision, it is equal to 2 mbx into bx upon 12, और ये हो जाएगा 2 कैंसिल्ड आउट, इट इज mbx square upon l. It means in 1 second the force applied on the wall it is equal to mbx square upon l. Any doubt you can ask here? 1 सेकंड में 2 mbx into bx upon 2l। हमने देखा कि एक कोलिजन में ये जो वॉल है इस पर 2 mbx फोर्स लगता है ना, और 1 सेकंड में कितना कोलिजन हो रहा है bx अपॉन 2l, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक कोलिजन में इतना फोर्स, इतने कोलिजन में ये वैल्यू हो जाएगी mbx स्क्वायर अपॉन l। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ये एक पार्टिकल, ध्यान में रखना, 1 पार्टिकल अप्लाइड फोर्स इन 1 सेकेंड mbx square upon l. 1 particle applied force on the wall in 1 second mbx square upon l. Suppose n सर आपने टेबल हिलाया ना, बचा दिया ये आपकी मोबाइल को बचा दिया। टाइट नहीं था लगता, टाइट स्क्रीन इसको ऑफ करें। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इन 1 सेकेंड इट इज इक्वल टू mbx स्क्वायर। मतलब एक मॉलिक्यूल गैस का वॉल पर 1 सेकेंड में mbx स्क्वायर अपॉन l फोर्स अप्लाई करता है, इतना न्यूटन का, मीन्स mbx स्क्वायर कितना कोलिजन होता है bx अपॉन 12 कोलिजन में, इतना फोर्स अप्लाई करता है वॉल ए पर एक पार्टिकल गैस का। इफ देयर आर n पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ गैस लिया गया है ना, इफ देयर आर n पार्टिकल्स force applied on the wall by the n particles, note down, force applied on the wall by the n particles
F it is equal to m upon L Vx Vx1 square plus m upon L Vx2 square plus m upon L Vxn square. Xn square. Here, where x Vx1 where note down where Vx1 Vx2 Vxn are the velocity component of the particles, where Vx1 Vx2 force applied on the wall by the n particles of the gaseous molecule. F is equal to m upon L Vx1 square m by L. पहले पार्टिकल ये लगाएगा, दूसरा पार्टिकल इतना, सेकंड पार्टिकल m by L Vxn स्क्वायर Vxn स्क्वायर. ध्यान रखिए. और Vx1 Vx2 Vxn are the velocity components of the particles along x-axis. Vx1 Vx2 Vxn are the velocity component of the particles along x-axis. अब n पार्टिकल की बात हो रही, पहले हमने एक पार्टिकल को लेकर के एक्सप्लेन किया था, तो m Vx स्क्वायर अपॉन L था. अगर n पार्टिकल्स हैं तो Vx1 Vx2 Vxn, this is the velocity component of the n particles along x-axis. अब देख रहे ना, therefore total force F it is equal to m upon L Vx1 square Vx2 square plus Vxn square. Vx1 square Vx2 square Vxn square, and here this can be written as m upon n upon L. हमने n से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया. इट इज Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर अपॉन n. It is the mean square velocity of the n molecules. It is equal to, we will write as mn upon L Vx स्क्वायर बार. जैसे x का लेते थे x बार लिखते थे, तो हमने स्क्वायर करके तब इसका मीन लिया है. इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी. हियर Vx स्क्वायर बार, इट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी. किसी गैस की हम एवरेज वेलोसिटी नहीं ले सकते. एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है. क्यों? गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में जाता है, इधर भी गया इधर भी गया, नेट वेलोसिटी जीरो. इसीलिए उसका हम स्क्वायर करके तब मीन लेते हैं. तो इट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, इट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस, n मॉलिक्यूल ऑफ गैस. ये ध्यान रखिए. mn upon L Vx square bar, it is the mean square velocity of n molecules of gas. Therefore pressure exerted, note down, therefore the pressure exerted on the wall P, it is equal to F upon A. We know that pressure P is equal to F upon A, and F it is equal to mn upon L अपॉन L स्क्वायर. मीन्स एरिया, एक कंटेनर की एरिया कितनी होगी, लेंथ अगर L है तो L स्क्वायर हो जाएगा. तो इट इज L अपॉन, तो L स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इट इज Vx स्क्वायर बार. एरिया कितनी हो गई, F अपॉन A, F इज दिस मच अपॉन A, A मीन्स L स्क्वायर. सो प्रेशर P इट इज इक्वल टू mn upon L cube Vx square bar. And here since, note down, since velocity
is equal every direction, since velocity of the gas is equal in every direction, therefore equal in every direction, therefore Vx square bar is equal to Vy square bar is equal to Vz square bar, and we have V square bar, it is equal to Vx square bar plus Vy square bar plus Vz square bar। और हम देख क्या रहे हैं कि Vx, Vy, Vz all are सेम, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज 3Vx square bar, it is V square bar, therefore in place of Vx square bar we can write 1/3 V square bar, and hence pressure P is equal to, ध्यान में रखना, Mn upon L cube को वॉल्यूम लिखेंगे, तो Mn upon V, और यह Vx स्क्वायर बार के प्लेस पे लिखेंगे 1/3 V स्क्वायर बार, तो 1/3 V square bar, and thus the pressure exerted 1/3 Mn upon V square bar. This is the pressure exerted by the gas on the wall of a container. This is the pressure exerted by the gas on the wall of a container. किसी कंटेनर के वॉल पर जो गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है, दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 Mn अपॉन V स्क्वायर बार। इट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एक मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो n मॉलिक्यूल्स का मास हो जाए, एक मोल का मास हो जाएगा Mn मतलब एटॉमिक मास। एक मोल गैस का मास क्या हो गया, एटॉमिक मास होता है ना, तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन आल्सो राइट इट इज 1/3 m अपॉन V स्क्वायर बार। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m इज द एटॉमिक मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास जिसको कहते हैं, एक मोल का पूरा मास, उसका एटॉमिक मास लेते हैं पूरा, ये हमारे पास हो जाता है 1/3 m अपॉन V स्क्वायर बार, मतलब हम Mn इट इज इक्वल टू कैपिटल M। यही हमारा प्रेशर एक्सर्टेड। इज इट क्लियर? लास्ट है यहाँ Vx स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 V स्क्वायर बार, क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल है, Vx स्क्वायर, तो 3Vx स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर बार, तो V स्क्वायर बार इज इक्वल टू Vx स्क्वायर बार 1/3 V स्क्वायर बार। हमने इसी के प्लेस पे 1/3 पुट कर दिया।